جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسپار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تو ابھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ میں اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خداوند سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہمارا ایمان ہے کہ تو زندہ خدا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ اگرچہ خداوند ہم تیرے گھر میں پوری کلیسیا کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکے، تو حالات سے واقف ہے۔ خداوند ہم تیری برکت کو ہر ایک گھرانے پر مانگتے ہیں جو آن لائن عبادت کے وسیلے سے ہمارے ساتھ شامل ہے، اور خداوند خاص طور پر تیرے رحم کو مانگتے ہیں۔ خداوند تو رحم کر اور پھر سے ممکن کر کہ تیرے لوگ تیرے گھر میں آ سکیں۔ لیکن خداوند جب تک ہم اسی طرح سے آن لائن اپنے اپنے گھروں سے عبادت میں شریک ہیں، ہم تیری برکت مانگتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ساری عبادت میں خداوند تیرا فضل ہمارے ساتھ ہو، تیرا ہاتھ ہم پر بڑھ جائے۔ تو اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کر، اپنی آگ سے ہمیں دھو دے، تاکہ ہم دھل جائیں اور پاک ہو جائیں۔ ہماری ناپاکیاں، نجاستیں یسوع کے نام سے دور ہو جائیں، اور تیرے فضل کے وسیلے سے ہم برکت پائیں۔ خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، تو ہماری رہنمائی کر۔ ساری عبادت میں تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارے خیالات اور دھیان کو تو اپنی طرف لگا، ہمارے ایمان کو مضبوط کر کہ اگرچہ خداوند ہم تیرے گھر سے دور ہیں، لیکن تو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خداوند تو اس عبادت کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، ہماری رہنمائی کر، تاکہ تیرے پاک روح کی مدد کے وسیلے سے ہم تیری حمد کر سکیں اور ایمان کی مضبوطی کے وسیلے سے تجھ سے مانگ سکیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये रसूलों का अकीदा हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है और हम अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हुए अपने मसीही अकायद पर अपने ईमान को मजबूत बनाते हैं। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 4 गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं तो सुन सच्चाई दे रब्बा। ज़बूर नंबर 4, ज़बूर नंबर 4। जदों तेनू मैं पुकारा। जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। तुसी लोगों मेरी इज़्ज़त करोगे बरकत की कर। तुसी लोगों मेरी इज़्ज़त करोगे बरकत रखोगे झूठनो प्यारा, चलोगे झूठ तेरा है। रखोगे झूठनो प्यारा, चलोगे झूठ तेरा पर। यकीन जानो यहोवा ने चुनिया देनदारा। यकीन जानो यहोवा ने चुनिया देनदारा। जदों सुनो मैं पुकारागा, सुनेगा वो पुकारागा। जदों सुनो मैं पुकारागा, सुनेगा वो पुकारागा। न जाना पाप दे मेरे परस तो तंग दे रहना। न जाना पाप दे मेरे परस तो तंग दे रहना। ते अपने बिस्तरे उठे दिला विच सोच चुप रहना। ते अपने बिस्तरे उठे दिला विच
सरों को झुकाएं और इस दुआ में बेटी स्टेला बिशारत हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा उन्हें महफूज रखा है और इस काबिल किया है कि हम इबादत में शामिल हो सकते हैं। अगरचे ये ऑनलाइन इबादत है, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि खुदा उन्हें सेहत दी। दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें महफूज रखे और खुदा दोबारा से दिन लाए कि हम इकट्ठे हो सकें। पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए पाकिस्तान में दुआ करेंगे, खुदा हम पर रहम करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, कोरोना वायरस को ख़त्म करे ताकि जल्द से जल्द दुनिया बहाल हो, दुनिया के काम माशी सरगर्मियाँ बहाल हो और खुदा के लोग उसके घर में दोबारा आ सकें। FC कॉलेज के लिए दुआ मांगेंगे, खुदा इस अदारे को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले तमाम अफसरान और स्टाफ जितने यहाँ पर काम करते हैं उनको बरकत दे, उनकी हिफाजत करे। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमारी कलीसिया की भी हिफाजत करे, हमारी कलीसिया को भी कोरोना से महफूज रखे और हमारी कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली, ईमानदार, मजबूत ईमान वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और स्टेला इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। कदूस 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 प्यारे अब्दीद के बादशाह सलामती के शहज़ादे खुदावन, मैं तेरी निहायत शुक्रगुजार हूँ इस घड़ी, इस मौका के लिए खुदा यीशु मसीह कि तूने मुझे ये दावत दी ताकि मैं तेरे हजूर में आऊँ और खुदा यीशु मसीह सबके लिए दुआ करने वाली बन सकूँ। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए खुदा यीशु मसीह कि तूने हमें जो बख्शा ताकि हम मिल बैठ कर दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। खुदा यीशु मसीह जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तू एक एक को जानता है, तू एक एक को छू और पाक कर। खुदा यीशु मसीह तू हमारी सोचों को, हमारे दिलों को खोल। खुदा यीशु मसीह तू हमारे ध्यान को अपनी तरफ लगा ताकि खुदा यीशु मसीह जितने भी लोग हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे वसीले से बरकत पाएँ। खुदा यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह इस अदारे के लिए जो तेरे नाम से कहलाता है, तेरे शुक्रगुजार हूँ कि खुदा यीशु मसीह तूने इस बरकत बख्शी, तेरे इसको ऐसी तौफीक बख्श ताकि चलाने वाले अफसरान जितने भी फैकल्टी मेंबर यहाँ पर काम करते हैं तो एक एक को छू और पा कर ताकि ये अदारा इसी तरह तेरे नाम में तरक्की करता चला जाए। खुदा यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह पूरे मुल्क में अमन सलामती कायम बख्श, इस कोरोना जैसी वबा को यीशु नाम से झिड़क देती हूँ। खुदा यीशु मसीह तू मोअज़ात का खुदा है, तू हर काम करने की कुदरत रखता है, तू मुसीबत में हमारी कुम्मक है। खुदा यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह तू हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। खुदा यीशु मसीह तू हमारी दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। खुदा यीशु मसीह तू मुसीबत में हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। खुदा यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह तू अल्फा ओमेगा है। खुदा यीशु मसीह कोई ऐसा काम नहीं कि तू नहीं कर सकता। हमारा ईमान है खुदा यीशु मसीह ये जो वबा ये हमारे गुनाहों की वसीले से इस दुनिया में आई, खुदा यीशु मसीह इस वबा को यीशु नाम से ख़त्म कर ताकि तेरे लोग एक दफ़ा फिर तेरे हजूर में जमा हो और खुदा यीशु मसीह ईमान का इकरार करने वाले बन सके। उनके ईमान को मजबूत कर खुदा यीशु मसीह तू हमारी राहों को रास्त कर। खुदा यीशु मसीह इन हालात में तू हमें ईमान की मजबूती बख्श ताकि हम खुदा यीशु मसीह डगमगाए नहीं बल्कि तुझ में बेबस रह कर फैलाएँ। खुदा यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह तू हम सबको छू और पा कर तू हमें बरकत बख्श खुदा यीशु मसीह ताकि हम गवाही देने वाले तैयार हुए। खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए जो ईमान में तुझ में बहुत मजबूत है, कदम ब कदम तुझ तेरे साथ चलती है। खुदा यीशु मसीह तो इन सबको छू और पा कर एक एक को बरकत बख्श, हर वायरस से, हर वबा से, हर एक खुदा यीशु मसीह कमी कमजोरी से तुम महफूज रख। तू हमारा चलना फिरना उठना बैठना जानता है। खुदा यीशु मसीह तू जहाँ पे भी तेरी कलीसियाएँ आबाद हैं, जो हज़ार सानियों में है खुदा यीशु मसीह जो इस वायरस में मुबतला है, तो उनको भी अपने पनाह अपनी हिफाजत में रख, अपने खुदा यीशु मसीह जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा यीशु मसीह तू हमारे दिल दिमाग को खोल खुदा यीशु मसीह ताकि हम तुझ में बेबस रहें। हमारी राहों को खुदा यीशु मसीह रास्त कर। हालात बहुत है खुदा यीशु मसीह खराब है, तेरा वक्त है खुदा यीशु मसीह नज़दीक है, तू हमें तैयार कर ताकि हम तेरी बादशाही को देखने वाले बन सकें। खुदा यीशु मसीह हमें ऐसी तौफीक बख्श ताकि खुदा यीशु मसीह हम तेरे चमकते सितारे बन सकें। खुदा यीशु मसीह तेरे शुक्रगुजार हो कि तू हमें इस लायक समझता है ताकि हम तेरे हजूर में आए और तुझे धन्यवाद कहने वाले बन सके। तूने हमें इतनी अच्छी साज आवाज़ बख्शी है ताकि हम तेरी हमदोस्ताइश करने वाले बन सकें। खुदा यीशु मसीह तू हमें लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्श ताकि हम ईमान की मजबूती से तुझसे मांगने वाले बन सकें। तू हमारे ईमान को मजबूत करे। खुदा यीशु मसीह जितने भी लोग ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, तो एक एक के घराने को छू और पा कर उन्हें बरकत बख्श, हर कमी कमजोरी से, हर वायरस से उन घरानों को शिफा बख्श। खुदा यीशु मसीह और उनको अपनी हिफाजत और पनाह में रख। तू मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन।
खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 39 गाएंगे। ज़बूर नंबर 39, ज़बूर नंबर 39। अपने राहदी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। ज़बूर नंबर 39 पहला हिस्सा। अपनी राहदी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। अपनी राहदी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। जदों बदले कोई मेघ पावा, जदों बदले कोई मेघ पावा, अपने मोल लगाम चढ़ावा, अपने मोल लगाम चढ़ावा। अपनी राखी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। खोया दूंगा मैं छुप छुपाना, खोया दूंगा मैं छुप छुपाना। काला कान गया मैं गवारा, काला कान गया मैं गवारा। अपनी राखी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। ताज़ा गम होया देश छाती धड़कती, ताज़ा गम होया देश छाती धड़कती। मेरे सोचण दे विच अगबरती, मेरे सोचण दे विच अगबरती। अपनी राखी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। पलकों पे मैं अपनी ज़ुबान दी, पलकों पे मैं अपनी ज़ुबान दी। ऐ यहोवा तू मैंने उदासी, ऐ यहोवा तू मैंने उदासी। अपनी राखी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। मेरा ओढ़ है तेरी, मेरा ओढ़ है तेरी। मैं जाना रहंदी है तेरी, मैं जाना रहंदी है तेरी। अपनी राखी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। उम्र मेरी है घट तेरी, उम्र मेरी है घट तेरी। तेरे आगे ना कुछ जान मेरी, तेरे आगे ना कुछ जान मेरी। अपनी राखी में राखी करांगा, मेथो ना हो कसूर ज़ुबान दा। इस आदम ना तुझे
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हमारा यीशु ज़िंदा है और उसके नाम में फ़तह है। इन मुश्किल हालात में जब हर तरफ बुखार है, कोरोना का खौफ है, बीमारियों का हमला है, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए ये आज़ादी पाते हैं कि हम अपने आप को और अपने घरानों को यीशु के सामने पेश करते हैं और वो हमारे साथ मौजूद है और हमारी दुआ को सुनता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम इकट्ठे मिलकर खुदावंद का दरवाज़ा खटखटाएंगे, खुदावंद से मांगेंगे कि वो रहम करे और हमारी हिफाजत करे, हमें शिफा बख्शे, हमारे घरानों को शिफा बख्शे और इस दुनिया को शिफा बख्शे और कोरोना इस दुनिया से ख़त्म हो। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारा ईमान है कि तेरा बेटा यीशु जिंदा है और उसने मौत पर फतह पाई और तो अपने बेटे यीशु के वसीले से हमारी दुआओं को सुनता है। तेरे बेटे यीशु के नाम में ही तू हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमें फतह देता है, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाए। हमारी मखलसी, हमारी रहाई, हमारी निजात सिर्फ यीशु के वसीले से मुमकिन है। चाहे वो हमारी रूहानी बीमारियां हों, चाहे हमारी जिस्मानी बीमारियां हों, हमारा ईमान है खुदावंद के यीशु के वसीले से ही हम फतह पाते हैं और शिफा पाते हैं। इसी ईमान में खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हमारी जिस्मानी तकलीफ, दर्द, थकान, जिस्मानी दर्द, जिस्म के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम और हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। बुखार यीशु के नाम से खत्म हो जाए और तेरी आग से हमारे जिस्म धुल जाए। यीशु के नाम से मौजज़ा मांगते हैं खुदावंद, हमारी सारी कलीसिया का हर एक फर्द यीशु के नाम से धुल जाए और शिफा पाए और खुदावंद कोरोना से महफूज रहे। खुदावंद खास तौर पर दुआ करते हैं हमारी कलीसिया के कितने लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट, शुगर पेशेंट्स हैं, किडनीज की प्रॉब्लम में मुबतला है। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए शिफा मांगते हैं। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जिन लोगों ने दरखास्त की दुआ की जाए उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुसूस के साथ खुदावंद दुआ करते हैं भाई सफदर भट्टी के लिए, भाई शहजाद डेमन के लिए, भाई इमैनुएल के लिए, भाई नईम तबस्सुम के लिए, यूनुस साहब के लिए, उनके सारे घराने के लिए, भाई तनवीर के लिए, और इस तरह से खुदावंद दुआ करते हैं मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, मिसेस मार्था अनवर के लिए, खुरम के लिए, खुरम के ख़ानदान के लिए और सारे कलीसिया के अफराद के लिए जो किसी तकलीफ में मुबतला है। मिसेस रिश्ता कमाल के लिए भी दुआ करते हैं और भी जितने लोग बीमार हैं सब के लिए शिफा मांगते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को छू और शिफा दे। भाई शहजाद मुगल के लिए भी शिफा मांगते हैं, भाई सुहेल चुगताई के लिए भी, बेटे शुहाम के लिए भी शिफा मांगते हैं। खुदावंद तू रहम कर, खुदावंद पूरी दुनिया पर रहम कर। खुदावंद कोरोना वायरस को सिर्फ तू खत्म कर सकता है। खुदावंद दुनिया के सारे इंसान, उनका इल्म, उनकी मेडिसिन्स सारे बेबस हैं, नाकाम हैं, लेकिन तेरा इल्म, तेरी कुदरत कभी नाकाम नहीं हो सकती। खुदावंद तू रहम कर, तू दुनिया को माफ़ कर, तू हम पर फजल कर, हमारे मुल्क से खुदावंद इस वबा को ख़त्म कर,
हमारी कलीसिया की हिफाजत कर, हमारे साथ हो। जितने लोग खुदावंद इस वक्त कोरोना वायरस से बीमार हैं, उनके लिए तेरा रहम मांगते हैं खुदावंद, उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर, तू रहम कर खुदावंद, तू फजल कर। भाई शमील के लिए दुआ करते हैं, तू उन्हें शिफा दे। भाई जयरूम के लिए दुआ करते हैं, उन्हें भी शिफा दे। और भी जितने लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पाएँ। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चंद ज़रूरी ऐलानात हैं, वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। अगरचे हम जानते हैं कि आप सब लोग खुदा के घर में ना आने की वजह से उदास भी होते हैं, खुदा के घर में ना आने की कमी को महसूस करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारे लिए घरों में रहकर इबादत करना ज़्यादा महफूज है और हमारे ईमान के मुताबिक भी है, क्योंकि हमारा ईमान ये कहता है कि यीशु हमारे साथ है। जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं अक्सर इस बात को आपको याद दिलाता हूँ ताकि हम ईमान में मजबूत रहें और कमज़ोर ना हों, क्योंकि हमें इस वक्त ईमान की मजबूती की बहुत ज़रूरत है। इन मुश्किल हालात में ईमान में मजबूत रहें और खौफ से बचे रहें और ईमान में कायम रहकर खुदावंद से दुआ करते रहें कि खुदावंद बहाल करे और फिर से हम इकट्ठे हो सकें। इसके साथ ही बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं अपने प्लेजेस देने के लिए, टाइट्स देने के लिए। तो उसके लिए अहम बातें ये हैं कि अगर आप अपनी टाइट्स चर्च के लिए देना चाहते हैं, प्लेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एल्डर सलीम साहब को कॉल कर सकते हैं या मुझे भी कॉल कर सकते हैं। एल्डर सलीम साहब का नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, 0333 4146 247, 0333 4146 247। इस नंबर पर आप एल्डर सलीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। वो आपके पास भी आ सकते हैं या आप उन्हें ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, उन्हें जैज़ कैश के ज़रिए से भी भेज सकते हैं, या मुझे भी बता सकते हैं ताकि मैं एल्डर सलीम साहब को बता सकूं और वो आपसे कनेक्ट कर सकें। अगर आप किसी की मदद के लिए देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे या एल्डर सलीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। और मेरा नंबर आप में से सारे के पास मौजूद है, 0322 4473 930। इस पर भी आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप एल्डर सलीम साहब से डायरेक्ट रब्ता करें, अगर आप उनसे बात ना हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और आप अपने मंथली प्लेजेस या टाइप जो है वो हमें दे सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पिछले माह आपके पास हम शायर बानी के साथ पहुँच सके थे, हम ये अगला जो आने वाला इतवार है उसको छोड़कर उससे अगले इतवार में जब खुदावंद करे हालात कुछ और बेहतर हों, हम आपके घरों में फिर से पहुँचाएँगे। लेकिन अगले इतवार हम ये नहीं करेंगे, हम इस महीने के तीसरे इतवार में करेंगे, क्योंकि ये इस महीने का पहला इतवार है। उसके बाद दूसरे इतवार में हम कलीसिया दस्तूर के मुताबिक शायरबानी करते हैं, लेकिन आइंदा इतवार हम शायरबानी नहीं करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस महीने के तीसरे इतवार में आपके पास शायरबानी के एलिमेंट्स अज्जा जो है वो पहुँचा सकें और उसके बाद आप हमारे साथ उसमें शामिल हो सकेंगे। और इसके साथ ही ख़ास तौर पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जून के महीने में हमारा जो चर्च है वो इसी तरह ऑनलाइन इबादत करेगा और खुदावंद करे कि आइंदा हालात बेहतर हों, फिर हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम हमारे सर्विस को कोशिश खोल सकें। लेकिन अभी जून के हवाले से इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखें कि ये पूरा महीना हमारी इबादत जो है वो ऑनलाइन होगी। फिर उसके बाद आइंदा हालात देखेंगे कि क्या बनते हैं। खुदावंद ये फजल करे, ज़रूर दुआ करते रहें कि खुदावंद जल्द से जल्द बहाल करे और हम दोबारा से इकट्ठे हो सकें। आए हम अब खुदावंद के कलाम में से देखें। खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 26। नए अहदनामे में से रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सबत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और तुमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे।
ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी जुबान में हक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जितने अरसे तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, और चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने दो को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लक़ब यूस्तुस है, और दूसरा मत्ततिया को, और ये कहकर दुआ की कि ए खुदावंद, तू जो सब के दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कुर्रा डाला और कुर्रा मत्ततिया के नाम का निकला। बस वो उनके 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम गीत नंबर 348 गाएंगे, गीत नंबर 348, और उसके पहले 3 मिसरे हम गाएंगे। गीत नंबर 348। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा,
तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारा ईमान है कि तेरा कलाम असर रखता है, तेरा कलाम बदल देता है, ज़िंदगियों को तब्दील करता है। तेरा कलाम आज कल बल्कि अबद तक यकसा है। दुआ करते हैं खुदावंद कि तू आज के कलाम के वसीले से बरकत दे, हमारी रहनुमाई कर, तेरा हाथ हम पर बढ़ जाए, हमारे ख्यालात तेरी तरफ लग जाएं और तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से आज का कलाम बरकत का बायस मसीह यीशु के नाम से आमीन। अगर हमने गुज़श्ता कुछ अतवारों में कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बाद के वाक़यात को सीखते रहे हैं, फिर उसके बाद ईद पेंतिकोस्त के हवाले से गुज़श्ता अतवार हमने सीखा है। आज से हम रसूलों के अमाल के पहले इब्तदाई हिस्से का हम आगाज़ कर रहे हैं। रसूलों के अमाल 4 अनाजील के बाद के खुदावंद यीशु मसीह के सऊद के बाद के वाक़यात को बयान करते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सऊद फरमाया, हम बड़ी तरतीब के साथ यीशु मसीह के मसलूबियत, फिर यीशु मसीह का ज़िंदा होना और ज़िंदा होने के बाद शागिर्दों पर ज़ाहिर होना, फिर आसमान पर चले जाना और रूहुल कुद्स के नज़ूल के बारे में सीखते रहे हैं। और मैंने सोचा कि अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद शागिर्दों ने क्या काम सरअंजाम दिए उनके बारे में सीखेंगे। और रसूलों के अमाल की किताब जो है, इसके नाम से ही ये पता चल जाता है कि रसूलों के काम, अमाल जो है वो अमल की जमा है, यानी जो अमल काम हम करते हैं उसके ज़्यादा जो जमा है, प्लूरल जो फॉर्म है उसका अमाल कहते हैं एक्स, और इसको इंग्लिश में द बुक ऑफ एक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे रसूलों के अमाल है, इसको इंग्लिश में हम द बुक ऑफ एक्स कहते हैं, यानी अमाल की किताब, यानी वो अमाल, वो काम जो शागिर्दों ने यीशु के आसमान पर जाने के बाद सरअंजाम दिए। और इस किताब को मुक़द्दस लूका ने लिखा। मुक़द्दस लूका की इंजील भी हम पढ़ते हैं, और अगर हम अमाल की किताब की पहली आयत देखें तो इसमें मुक़द्दस लूका इसका जिक्र करता है, ए थिफलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तस्लीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। यानी मुक़द्दस लूका की इंजील उन बातों को बयान करती है जो यीशु सिखाता रहा और यीशु करता रहा। अंजील में यीशु के काम, यीशु की बातें, यीशु के मौजज़ात और यीशु की ज़िंदगी के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन जब मुक़द्दस लूका दूसरी किताब ये रसूलों के अमाल लिखता है तो उसमें वो रसूलों के बारे में बताता है कि रसूलों ने क्या किया। इस खास तौर पर इसको चुनने का मकसद ये है कि इस किताब को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ये थी पहले बाब में कि तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये यीशु ने अपने ईमानदार शागिर्दों की जिम्मेदारी लगाई थी। और इस किताब में हमें 3 हिस्सों में ये बात तकसीम होते हुए नजर आती है कि सबसे पहले शागिर्दों ने यरूशलेम से आगाज़ किया, और इस किताब में हमें, अगर हम अमाल की किताब की जो आज हवाला तलावत किया गया है उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे। यानी शागिर्दों ने यीशु के हुक्म के मुताबिक यरूशलेम की तरफ रुख किया और वहां से अपनी खिदमत का आगाज करने वाले थे। फिर उसके बाद ये पहला हिस्सा जो है वो शागिर्दों की यरूशलेम में खिदमत और मुनादी पर मबनी कि किस तरह से उन्होंने मुनादी की। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे इलाके, फ़लस्तीन का जो इलाका है उसमें यहूदिया और सामरिया दूसरे जो सूबे थे उनमें खिदमत को उन्होंने फैला दिया। फिर उसके बाद इसका तीसरा हिस्सा जो है वो रोम में मुक़द्दस पालूस की खिदमत है। बहरा रोम के इर्द गिर्द और रोम का जो रियासत है, मुल्क है, उसमें मुक़द्दस पालूस का चले जाना, मिशनरी दौरे करना, और मुक़द्दस पालूस के 3 मिशनरी दौरे जो हैं वो उनका इसमें हमें जिक्र मिलता है। मुक़द्दस पालूस रसूल ने, अगर आप बाइबल के आखिर में देखें तो वहाँ पर आपको नक्शा जात मिलेंगे, उसमें मुक़द्दस पालूस के 3 मिशनरी दौरों का जिक्र है। पहला मिशनरी दौरा, दूसरा मिशनरी दौरा, तीसरा मिशनरी दौरा, यानी वो मुख्तलिफ जगहों पर गया। उसके नक्शे आपको बाइबल मुक़द्दस में से मिल सकते हैं कि पालूस रसूल किन किन जगहों पर सफ़र करता हुआ गया और उसने मसीह की बुनियादी की। रसूलों के अमाल की किताब इस तीनों हवालों में 3 दर्जात में तकसीम करके यीशु के हुक्म के मुताबिक
शागिर्दों के कामों को बयान करती है कि शागिर्दों ने किस तरह यीशु के हुक्म को अपनी जिंदगी में ले लिया और किस तरह से उसकी हुक्मबरदारी करते हुए तरतीब के साथ जिस तरह यीशु ने बयान किया अपनी खिदमत को रूहुल कुदस की मदद के वसीले से आगे बढ़ाते रहे। आज हम जिस हवाले की हमने तिलावत सुनी है उसमें सिर्फ हम पालूस इसमें हम रसूलों के उन कामों को देखेंगे जो उन्होंने रूहुल कुदस के मिलने से पहले किए। उसके बाद आगे दूसरे बाब के बाद बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र हमें मिलेगा जो इब्तदाई कलीसिया में पहली दफ़ा रूनुमा हुई। जैसे अभी तो आज हम सीखेंगे कि पालूस माफ़ कीजिएगा रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रूहुल कुदस के मिलने तक का जो अरसा है उसमें क्या काम किए, लेकिन उसके बाद रूहुल कुदस के मिलने के बाद खास तौर पर कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जिसमें पहली कलीसिया का कायम होना, मुकद्दस पतरस का पहली दफा कलीसिया के साथ यीशु के जिंदा होने के बारे में खुशखबरी को बांटना, इसी तरह से कलीसिया में पहली इज़हार सानी का होना, शागिर्दों का पहली दफा इज़हार सानी का शिकार होना, फिर उसके बाद शागिर्दों में से कलीसिया में से पहले शहीद का मुकद्दस स्तिफनस का बयान। इन सारी बातों को जो पहली दफा कलीसिया में रूनुमा हुई हम उनको मुख्तसर तौर पर हर अतवार की तरतीब के साथ सीखते जाएंगे। लेकिन इस दफा हम शागिर्दों के कामों को देखेंगे जो उन्होंने यीशु के आसमान पर जाने के बाद किए। अगर हम मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील को देखें तो उसके 24वें बाब की जो आखिरी आयत है 35वीं आयत तो माफ कीजिएगा 53वीं आयत उसमें लिखा है वो हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। उससे पहले 52वीं आयत में लिखा है कि वो उसको सिजदा करके खुशी के साथ यरूशलेम को लौट गए और हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। सबसे पहला काम और तब्दीली जो है शागिर्दों में ये आई कि वो खुशी के साथ उसको सिजदा करते और हैकल यानी यरूशलेम की तरफ चले जाते और यरूशलेम में हैकल में जमा होकर खुदा की हम्द किया करते थे। इसमें शागिर्दों की जिंदगी में एक तब्दीली नजर आती है। शागिर्द यीशु की मसलूबियत के वक्त खौफ में थे, मायूस थे, दुनिया के कामों में चले गए, शक में मुब्तला हुए हैं। ये सारी बातें हम सीखते रहे, ये सारी बातें शागिर्दों की जिंदगी से नजर आती रही। लेकिन जब यीशु आसमान पर गया तो उसके बाद वो खुशी के साथ यरूशलेम को आए। हालांकि यीशु का आसमान पर जाना उनके लिए परेशानी का बायस हो सकता। यूहन्ना के इंजील के 4वें बाब में जब यीशु मसीह अपने आसमान पर जाने का जिक्र करते हैं तो उस वक्त शागिर्द परेशान थे। यूहन्ना के इंजील का 4वां बाब अगर देखें तो उसका आगाज होता है तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो तुमसे क्या देता। यानी शागिर्द परेशान थे जब यीशु उन्हें अपनी मसलूबियत के बारे में बयान करते थे या अपने आसमान पर जाने के बारे में बयान करते थे तो वो परेशान हो जाते थे कि हमारा क्या बनेगा। तो यीशु यूहन्ना के इंजील में कहते तुम्हारा दिल ना घबराए, फिर कहते मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, मैं तुम्हें आऊँ, मैं दोबारा आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी। और तुम कहता है कि हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जाते हैं, फिर राह किस तरह जाने। वहाँ पर तुमा बयान करता है कि हमें नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हैं। यानी वो बड़े मायूस थे, खौफजदा थे। लेकिन जब यीशु आसमान पर गया और फरिश्तों ने आकर उन्हें कहा कि जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा है इसी तरह वापस आते देखोगे, और यीशु का उनको बार बार जाहिर होना, उनको मजबूत करना, उनको जिम्मेदारी सौंपना, उनको रूहुल कुदस का वादा देना, इन सारी बातों ने उनके ईमान को मजबूत कर दिया। यीशु ने आसमान पर जाने से पहले कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद अगर मुकद्दस लूका की इंजील देखें, मुकद्दस मरकस की इंजील देखें, हर इंजील के आखिर में यीशु ने जिम्मेदारी सौंपी है। और कोई जिम्मेदारी आसान जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल थी। तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। अगर लूका की इंजील देखें तो उसमें लिखा है यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। अगर मुकद्दस मरकस की इंजील में चले जाएं तो उसमें भी लिखा है कि तुम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। अगर हम मत्ती की इंजील में चले जाएं तो उसके 28वें बाब की 18वीं से 20वीं में लिखा है सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। There was a big task given to the disciples। बहुत बड़े टास्क को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को शागिर्दों को दे दिया गया था। तुम तमाम खल्क में जाकर उसकी मुनादी करो। दुनिया में गुनाहों की मुनादी की जाएगी, तौबा की मुनादी की जाएगी।
یہ ساری باتیں ان کے لیے آسان نہیں تھیں کہ وہ اسرائیل، وہ یہودی لوگ جن کے سامنے یسوع نے منادی کی اور اس کو مصلوب کر دیا گیا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے گناہوں کی توبہ کی منادی کی، اس کا سر کٹوا دیا گیا، وہ واقف تھے کہ ان کی منادی کے اثرات کیا ہوں گے، وہ واقف تھے کہ وہ کیا مستقبل میں اپنی سزا کا سامنا کر سکتے جو انہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود یسوع کے وعدوں نے انہیں مضبوط کر دیا۔ شاگردوں کا یہ کہنا کہ وہ پھر سے واپس آئے گا، اس نے انہیں مضبوط کر دیا۔ روح القدس ملنے کے وعدے نے انہیں مضبوط کر دیا اور وہ خوشی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ ان میں ایک تبدیلی رونما ہو گئی یسوع کے وعدے کے ساتھ، یسوع کے وعدے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے ساتھ پیشین گوئی کہ وہ پھر سے آئے گا۔ یہ وعدہ یسوع نے جو شاگردوں سے کیا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، یسوع نے میرے مقدس مرکز کی انجیل میں اور بھی وعدہ کیا۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اس کے بعد 17ویں آیت لکھا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدبوؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے وعدے، معجزات کے وعدے، ایمان سے مضبوط کرنے کے وعدے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر یہ کہنا کہ میں پھر سے آؤں گا، یا فرشتوں کا یہ کہنا کہ یسوع پھر سے آئے گا، تم اسے دیکھو گے، میں تمہیں آسمان سے تمہیں قوت کا لباس ملے گا، عالم بالا سے یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ ان سارے وعدوں نے شاگردوں کو مضبوط کیا اور ان کی مضبوطی اس دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئی ہے۔ آج اربوں لوگ دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی لوگ ہیں 12 شاگردوں کے مضبوط ہو جانے سے، یسوع کے وعدے پر ایمان رکھنے سے۔ ان شاگردوں نے پوری دنیا میں مسیحت کو روح القدس کے وسیلے سے پھیلا دیا۔ میرے عزیزو، آج بھی حالات ایسے ہیں، خوف ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، شک ہے، شاگردوں کی طرح کے حالات ہیں۔ یسوع کا وعدہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس توبہ کے خوف میں شاگرد یسوع کے دنوں میں جب یسوع زندہ ہوئے تو شاگرد یہودیوں کے ڈر سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے کوارنٹین ہوئے تھے، بند کر کے بیٹھے تھے۔ آج ہم بھی خوف میں مبتلا ہیں، بند ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس ایمان کو اپنے ساتھ رکھیں کہ یسوع میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ یسوع کا وعدہ، اور میں نے دعا میں بھی یہ کہا کہ خدا کا کلام آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یسوع کے وعدے اس وقت بھی شاگردوں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی، دنیا کے ہر ایک شخص کے ساتھ جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے ہیں۔ دنیا کے آخر تک ہر ایماندار کے لیے جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ وعدہ ہے کہ یسوع اس کے ساتھ ہے اور یسوع اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور مقدس مرکز کی انجیل کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ، یہ اختیار، یہ معجزات کی قدرت یسوع نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، یہ ہمارے خوف کو خوشی میں بدلنے کے لیے ہے، یہ ہمارے دکھ کو، ہماری مایوسی کو ایمان کی مضبوطی میں اور خوشی میں بدلنے کے لیے ہے کہ یسوع نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم بیماروں کے لیے شفا کا باعث ہیں۔ اور یسوع نے ہمیں یہ اختیار اور قدرت دی ہے کہ یسوع کے نام سے ہم معجزات کو دیکھتے ہیں، نقصان پہنچانے والی وباؤں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے شاگردوں کی طرح ہمیں بھی خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ یسوع میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آنے کے لیے بھی تیار ہے، آنے والا ہے، وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس بات سے خوف زدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمی اور ہمارے بائبل کے علم کی کمی کا ہم شکار ہیں۔ اگر قیامت آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے یسوع آنے والا ہے، اور یسوع آنے والا ہے تو اس کا مطلب ہمارا ایمان مکمل ہونے والا ہے۔ ہمارے ایمان کوئی یہ نشانی ہے کہ یسوع آنے والا ہے۔ اس لیے شاگردوں کی طرح ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شاگرد دعا کرتے تھے،
हैकल में जमा होकर खुदावंद की हम्द किया करते थे और फिर उसके बाद एक दिल होकर बाला खाने में दुआ में मशगूल रहे। हैकल में जमा होते थे। इब्तदाई कलीसिया जब तक शागिर्द जो थे शुरू में वो भी हैकल में जाकर इबादत करते थे, जहाँ पर यहूदी इबादत खानों में इबादत की जाती थी। इसी तरह उन्होंने भी अपनी इबादत को हैकल में जारी रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने सबत के बजाय अपने लिए खुदावंद के दिन को मुकर्रर किया, यानी इतवार के दिन को जिस दिन यीशु जिंदा हो गए थे उसको इबादत के लिए मुकर्रर किया। और इबादत का आगाज़ घरों में भी, हाउस चर्चेस का आगाज़ हुआ, इकट्ठे होते थे, इबादत करते थे। और यहाँ पर 13वीं आयत में बाला खाने का जिक्र है, और बाला खाने में लिखा है कि बहुत से तमाम शागिर्द जो हैं वो जमा थे, और उसके बाद खातीन भी जमा थी, मुकद्दसा मरियम भी जमा थी, यीशु की माँ भी, और खातीन भी जमा थी। वो इकट्ठे होकर दुआ करते थे। दुआ में 2 खूबियाँ उनकी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 14वीं आयत में लिखा है, पहला बाब माल की किताब 14वीं आयत में, भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। पहली बात है एक दिल होना, और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ है होमोथोमाडॉन। होमोथोमाडॉन का मतलब है कि विद वन अकॉर्ड, विद वन माइंड, विद वन पैशन, एक जज्बे के साथ, एक सोच के साथ, एक ज़हन के साथ, एक दिल होकर, यानी उनका जज्बा, उनकी सोच एक थी। वो सोच क्या थी कि जो जिम्मेदारी यीशु ने हमें दी है हमने उसको पूरा करना है। बस एक ही सोच थी, सारी सोचें ज़हन से निकल गई। शागिर्दों ने कारोबार करते रहे थे, शागिर्द अपने अपने काम करते रहे थे। यीशु ने जब गलील में इनको मिलने का कहा, फिर शागिर्द दोबारा से 7 शागिर्द जिन पर यीशु जाहिर हुआ वो भी अपने काम पर दोबारा लगे। लेकिन उसके बाद जब यीशु आसमान पर चले गए, यीशु ने एक जिम्मेदारी सौंप दी। फिर शागिर्दों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जिम्मेदारी पर था कि हमने यीशु की गवाही देनी है, हमने मुनादी करनी है। वो एक दिल होकर दुआ करते थे, एक ही मकसद कि यीशु की गवाही के लिए तैयार होना है। एक ही मकसद के साथ हमें भी दुआ करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर यीशु की गवाही के लिए। कलीसिया का इस दुनिया में रहने का मकसद ये है, कलीसिया को इस दुनिया में रखने का मकसद ये है, हमें इस मुल्क में रखने का मकसद ये है, हमें अपनी अपनी जगहों पर जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर यीशु के रखने का मकसद ये है कि यीशु हमें उस जगह पर रखकर हमें गवाही के लिए, मुनादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो मुनादी हमारे किरदार के ज़रिए से हो सकती है, वो मुनादी हमारे ईमान के ज़रिए से हो सकती है, वो मुनादी हमारे ज़रिए से मोजज़ात होने के ज़रिए से हो सकती है, वो मुनादी दुआ के ज़रिए से हो सकती है कि हम दूसरों के लिए दुआ का बायस, उनके लिए बरकत का बायस बन जाएं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारा एक ही मकसद दुआ में होना चाहिए कि यीशु हमें दूसरों के लिए बरकत का बायस बना दे, यीशु हमें दूसरों के लिए मुनादी करने का, यीशु की खातिर लोगों को जीतने का, रूहों को जीतने का बायस बना दे। ये एक मकसद हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये थी कि एक दिल होकर दुआ करने में मशगूल रहे। उन्होंने दुआ को जारी रखा, उसमें मसरूफ़ रहे। सिर्फ एक ही काम था, एक दिल होकर दुआ करनी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब गतसमनी बाग में पकड़वाए जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ थे, मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 38वें आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और हर दफ़ा जब यीशु अपने शागिर्दों के पास वापस आए तो उन्हें सोते हुए पाए, और आखिरी दफ़ा जब तीसरी दफ़ा आए तो अब दुआ की ज़रूरत नहीं, इब्ने आदम का पकड़वाने का वक्त आ पहुँचा। यानी शागिर्दों के दुआ का मकसद ये था, जो यीशु ने कह रहे थे कि शागिर्द जिस दुख का सामना करने जा रहे थे, दुआ के वसीले से वो मजबूत हो जाएं और आज़माइश से बचे रहें। लेकिन उनके दुआ ना करने के बायस कोई भी शागिर्द उस आज़माइश में खड़ा न रह सका। सारे शागिर्द भाग गए, जितने शागिर्द थे यीशु को छोड़कर भाग गए। खुदा का कलाम ये कहता है कि सारे शागिर्द भाग गए। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना आखिर तक साथ रहे, लेकिन मुकद्दस पतरस भी इनकार कर गया, क्योंकि मुकद्दस पतरस को उसने सोते हुए पाया। अगर वो दुआ करता रहता तो शायद वो आज़माइश से निकल जाता और बच जाता। मुकद्दस यूहन्ना सलीब पर साथ रहा और वो मुकद्दसा मरियम को साथ लेकर गया, लेकिन बाकी सारे शागिर्द जो थे वो आज़माइश में नाकाम रहे। लेकिन यीशु के ये बात कहने का मकसद ये था कि शागिर्द आने वाली मुश्किल में मजबूत हो सकें,
जागते रहो और दुआ करते रहो। ये शागिर्द बाद में दुआ में मशगूल रहे, बाद में वो उन्होंने तजर्बा कर लिया कि दुआ ना करने के बायस हम आजमाइश में गिरे थे। अब उनके ये तजर्बा है कि अगर हम दुआ करेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, इसलिए अब वो एक दिन होकर दुआ में मशगूल है, जारी है, दुआ जारी है। और इसके लिए यूनानी लफ्ज़ का मतलब है टू कंटिन्यू ऑल द टाइम, कि हर वक्त जारी रखना दुआ को। या उसके बाद ये भी है टेंटेटिव अनटू, के या स्टेडफास्टली डूइंग समथिंग, कि किसी चीज़ को बड़ी वफादारी के साथ करना, जारी रखना, और उन्हें जारी रखा। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमें इसी तरह दुआ की ज़रूरत है, इसी तरह दुआ करते रहने की ज़रूरत है। मुश्किल हालात में जब हर तरफ खौफ है, दुआ जारी रखें, दुआ में मशगूल रहें, एक दिल होकर दुआ करें और एक दिल होकर दुआ में शामिल रहने से, वफादारी के साथ दुआ को जारी रखने से हम गालिब आएंगे। जिस तरह यीशु ने कहा, दुआ जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। एक बहुत बड़ी आजमाइश, कोरोना एक बड़ी आजमाइश जो हमारे ईमान को कमज़ोर कर रही है, जो हमें खौफ में मुबतला कर रही है। दुआ में मशगूल रहे, ईमान में कायम रहे। उसके बाद एक और उन्होंने काम किया, उन्होंने एक और शागिर्द को शामिल किया, यहूदा इस्करियोती की जगह। उन्होंने 120 की जमात में से 15वीं आयत में लिखा है, और उन्हीं दिनों पतरस, जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी, खड़े होकर कहने लगा। फिर उसने वो सारी बात बताई कि यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ। फिर आखिर में अगर हम उसकी 14वीं आयत को देखें, माफ़ कीजिएगा 23 में 24वीं आयत में देखें तो वहाँ पर 2 शख्सों को पेश किया गया। एक यूसुफ जो कि बरसबा और जिसका लक़्ब जो था वो यूस्तस था, उसको, और मततिया, इन दोनों को पेश किया गया और दुआ करके कुर्रा डाला गया। और उनसे कुर्रा जो है मततिया के नाम निकला। और जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी ये थी, 25वीं आयत में लिखा है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। उन्होंने अपनी खिदमत में एक और शख्स को शामिल किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो चला गया, असी 11 ही बड़े, हम 11 ही सब कुछ कर लेंगे, हम 11 ही बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बड़े मेहनती हैं, हम बड़े काबिल हैं, हम यीशु से बहुत प्यार करते हैं, किसी और की हमें ज़रूरत नहीं है। बल्कि उन्होंने एक और शागिर्द को यीशु के मुकर्रर करदा 12 शागिर्दों के मुताबिक उस तादाद को पूरा करने के लिए दोबारा से 12वें शागिर्द को शामिल कर लिया। और मततिया को पूरा जब उसका नाम निकला तो उसके साथ शामिल करना हमें भी सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियाँ बांटना सीखें। हम खिदमत में ये ना समझें कि सिर्फ हम ही यीशु के वफादार हैं, ये ना समझें कि हम सिर्फ खुद ही कर सकते हैं। ये खुदा के खादमों के लिए भी है, खुदा के घर में खिदमत करने वालों के लिए भी है, और ईमानदारों के लिए भी है। कि हम ये ना समझें कि सिर्फ हम ही अकेले ईमानदार हैं, कि सिर्फ खुदा हमसे ही काम ले सकता है। खुदा हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा बहुत से लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। हमें उन्हें भी अपने साथ खिदमत में शामिल करने की ज़रूरत है, उन्हें भी जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है, और अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करने के बजाय दूसरे लोगों की मदद को भी अपने साथ शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का काम आगे बढ़े। हम खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर रखे गए, हम खुदा की खिदमत के लिए, उसकी मुनादी के लिए इस दुनिया में रखे गए। उसकी मुनादी के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की काबिलियत को, एक दूसरे की खिदमत को कबूल करें, एक दूसरे की अहमियत को कबूल करें, एक दूसरे को अपने साथ खिदमत में शामिल करते हुए उसकी काबिलियत, उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए खिदमत में आगे बढ़े। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत बख्शे, और हमें भी तैयार करें कि हम शागिर्दों की तरह उसकी मुनादी के लिए तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। क्योंकि जिस तरह यीशु ने ये जिम्मेदारी शागिर्दों को सौंपी, यीशु ने ये जिम्मेदारी हर ईमानदार को सौंपी है कि हम दुनिया को उसका शागिर्द बनाएं, हम दुनिया के सामने उसकी मुनादी करें, हम दुनिया के सामने उसकी मुनादी के ज़िम्मेदार हैं, गवाही देने के ज़िम्मेदार हैं। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम शागिर्दों की तरह दुआ में मशगूल रहते हुए, ईमान में मजबूत रहते हुए मुश्किल हालात से निकल सकें और उसकी मुनादी करने वाले बन सकें। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम इस वक्त गीत गाएंगे, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है मिलेगा। हम इकट्ठे मिलकर खुदावंद से ये दुआ करते हुए इस ईमान को मजबूत करेंगे कि खुदावंद से जब हम मांगते हैं तो मिलता है।
वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम अपने आप को तेरी हुजूरी में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमारी हिफाजत कर। ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरे, तो हमारे साथ हो, हमारे घरानों के हर एक फर्द की तू हिफाजत कर। कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ, परेशानी, कोरोना वायरस के कोई जरासीम हमारे घराने के किसी फर्द को नुकसान न पहुँचाने पाए। खुदावंद तू हर एक को छू और बरकत दे और हमारे साथ तेरा हाथ हम पर बढ़ जाए। खुदावंद कलीसिया के हर एक फर्द को तेरे खून की कुदरत में महफूज करता हूँ, और जितने लोग बीमार हैं खुदावंद के लिए फिर से शिफा मांगता हूँ। तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को छू और शिफा दे, और खुदावंद तू हम सब की हिफाजत कर, हमारे घरानों की हिफाजत कर, हमारे बच्चों की भी, बुजुर्गों की भी हिफाजत कर। और खुदावंद जल्द से फिर ये दिन ला कि हम तेरे घर में इकट्ठे हो सके। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश पर पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।